Hello students, today we are going to discuss a very important chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. So first of all, what is electrochemistry? Electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy by redox process. Okay students, with the help of redox process or by redox process, chemical energy converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy. This process occurs in electrochemistry with the help of redox process. Okay students, so next topic is electrolysis. In this chapter, at first we learn about electrolysis, then electrolytic cell. The process occurs in electrolytic cells and all. Okay students, so what is electrolysis? Electrolysis means the process of decomposition of electrolyte by passing electric current is called electrolysis. Okay students, electrolysis means decomposition of electrolyte in the presence of electric current. Okay, in this process electrical energy is converted into chemical energy. This is electrolysis. And electrolytic cell, the cell in which electrolysis is carried out, where electrolysis occurs, the cell is called electrolytic cell. Okay students, we have electrolytic cell here. In electrolytic cell, two different electrodes present. One is cathode, another is anode. Remember it, in electrolytic cell always cathode at right side, anode at left side. Anode attached with positive electrode, in case of cathode that is negative electrode. In electrolytic cell always electrical energy is converted into chemical energy. Okay students, in this electrolytic cell electrical energy always converted into chemical energy. Okay, in electrolytic cell oxidation of ions takes place at anode and reduction of cation takes place at cathode. Okay students, we learn also that cathode means reduction, anode means oxidation. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है जिसको हम CR से याद कर सकते हैं. एनोड आओ कह सकते हैं. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. ये देखिए, एम में हमारा कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है जो एम प्लस और ए माइनस में ब्रेक किया है. एम प्लस प्लस ई माइनस मतलब रिडक्शन दिखाया जा रहा है. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं, ऑक्सीडेशन दिखाया गया है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एंड नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट. सबसे पहले हम लोग अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखने जा रहे हैं कि कैसे मैकेनिज्म होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में. ओके, तो पहले देखेंगे मोल्टेन स्टेट. मोल्टेन स्टेट मीन्स जब हम कोई वहाँ पर एक्वस सोल्यूशन नहीं लिए हैं, केवल वही सब्सटेंस है. जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl. NaCl का हम लोग देखने जा रहे हैं. इट मीन्स सेल में केवल NaCl है, वाटर डिजॉल्व नहीं किया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, मोल्टेन स्टेट में. कैथोड पर क्या होगा, आपको बताया गया था कि हमेशा कैथोड पर क्या होगा, CR मीन्स रिडक्शन होगा. कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, Na बना रहा है. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है इसमें, Na प्लस Cl माइनस दे रहा है Na प्लस प्लस हाफ Cl2. हम Cl को हाफ Cl2 भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड का देखते हैं। लेड ब्रोमाइड मीन्स PbBr2, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कैथोड पर आपका क्या होगा, कैथोड पहले मैंने बताया Cr रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए 2Br माइनस Br2 2E माइनस। ओवरऑल रिएक्शन आपका जो होगा PbBr2 लिक्विड स्टेट में, Pb लिक्विड Br2 दिया। ओके स्टूडेंट, ये आपका किस में था, मोल्टेन स्टेट में, मीन्स हमने कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं लिया था, जो सब्सटेंस था उसी का सोल्यूशन आप बना रहे थे, ठीक है। उसी में आप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे थे, ठीक। आई रिपीट, NaCl ऑलवेज एट कैथोड, Na ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड एंड एनोड ऑक्सीडाइज्ड, रिएक्शन आर एज फॉलोज। अनदर एग्जाम्पल, लेड ब्रोमाइड एट कैथोड, lead gain electron, anode loses electron. Mechanism of electrolysis in aqueous medium, what we can done in aqueous medium. So first of all, जैसे मैंने पहले बताया, aqueous medium में क्या होता है, किसी solution में आपको रखना है, ठीक है। तो aqueous medium में हमको देखना क्या होता है, electrolysis of an electrolyte in aqueous solution medium not only depend on the nature of electrolyte but also on the nature of electrodes, ठीक है। केवल इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता, ये इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रोड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। किसमें, एक्वस मीडियम में, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। PtIr ग्रेफाइट, आपके प्लेटिनम क्या है, ग्रेफाइट, ये सब जो आपके होते हैं इलेक्ट्रोड्स, वे होते हैं इनर्ट, मीन्स ये क्या करेंगे, ये कोई भी पार्टिसिपेशन इनका नहीं रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस में, ओके। अनदर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एट फर्स्ट व्हाट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल, इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर सल्फेट, copper is active electrode, AgNO3 Ag, FeSO4 Fe and AuCl3 Au। इसमें देखिए कॉपर, सिल्वर, आयरन और गोल्ड, ये सब क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर, आयरन सल्फेट में आयरन, और ये आपके गोल्ड के क्लोराइड में गोल्ड, ठीक है। अब आगे आपको क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस मीडियम डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखिए क्या होता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी होता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के थ्रू एक्वस मीडियम में आपके क्या होते हैं, वर्क्स होते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम में जो आपके होते हैं, इस थ्योरी के थ्रू वर्क किए जाते हैं, ठीक। ये है क्या, सबसे पहले, if 2 or more cations migrate towards cathode or 2 or more anions migrate towards anode, then that ion is discharged which required least energy। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी एनर्जी लीस्ट होगी वो क्या करता है, डिपॉजिट होता है, डिस्चार्ज होता है पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे आयन, कैटायन और एनायन की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर एनायंस। एनायंस का देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एनायंस का क्या है, ठीक है, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए F माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस इज ग्रेटर देन CO2 माइनस कार्बोनेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटायन, कैटायन का दिया गया है, लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन K प्लस, Na प्लस, Ca प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, देन Man मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Pt, Au। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दिए गए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर कैटायंस के, एनायंस के। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, रिमेंबर इट, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मीन्स यहाँ पर वाटर लिया गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl ब्रेक करता है Na प्लस और Cl माइनस में, H2 ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस में। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, H बनाया। एनोड पर क्या होगा, लूज किए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, AO आओ। कैथोड पर रिडक्शन होता है, Cr। ठीक है, आगे देखिए, फिर Na प्लस और OH माइनस क्या होगा, रिमेन्स इन सोल्यूशन आफ्टर एवेपोरेटेड, NaOH यील्ड्स। ओके स्टूडेंट, ये क्या होता है, NaOH के फॉर्म में निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, प्रोसेस आर सेम, CuSO4 गिव्स Cu2 प्लस SO42 माइनस, H2O गिव्स H प्लस OH माइनस। कैथोड पर क्या होगा, Cr होता है, इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन बनेगा आपका। एनोड पर ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा, कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। ऊपर वाले में क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन डिपॉजिट होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न फैराडे लॉ। थैंक यू।